داستان اوکاشا رسلان اس قلم مہر نور قسط نمبر 3۔ نارنیا کے آسمان پر ایک خوبصورت سی صبح اتر چکی تھی۔ شاہی محل میں ہر انسان اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا، مگر شہزادی اوکاشا کے کمرے میں ایک الگ پریشانی چل رہی تھی۔ وہ غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی اور اس کے سامنے کچھ کنیزیں کھڑی تھیں۔ کیا مطلب انگوٹھی نہیں ملی؟ تم سب جانتی نہیں ہو وہ انگوٹھی میرے لیے کتنی خاص ہے؟ جاؤ، چاہے تو پورے محل کا کونا کونا چھان مارو، مگر مجھے میری انگوٹھی دوپہر سے پہلے چاہیے۔ وہ رات والے حلیے میں کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی چیخ و پکار کمرے سے باہر تک جا رہی تھی۔ آج صبح جب وہ اٹھی تو اس کی انگوٹھی غائب تھی، اور وہ جانتی تھی وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی۔ اس کا غائب ہونا بنتا ہی نہیں تھا، مگر اب وہ پچھتا رہی تھی۔ اس نے انگوٹھی اتاری ہی کیوں؟ کنیزیں کمرے کے ہر کونے میں اس کی انگوٹھی تلاش کر رہی تھیں، اور اوکاشا کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اگر رسلان کو معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنی اتنی قیمتی انگوٹھی کھو دی تو وہ اس سے ناراض ہو جائے گا، تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ اوکاشا کتنی لاپرواہ ہے۔ وہ اپنی کوئی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی، وہ ملکہ کی ذمہ داری کیسے نبھائے گی؟ وہ بے بسی سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی جب کمرے کے بھاری دروازے کھلے اور ملکہ صوفیہ اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے ایک نظر سارے کمرے کے بکھرے خلیے پر ڈالی اور دوسری نظر اوکاشا پر۔ یقیناً انہیں بھی انگوٹھی کھو جانے کی خبر کسی کنیز سے مل چکی تھی۔ سب کنیزیں ملکہ کو دیکھ کر ان کے سامنے سر جھکا گئیں۔ ہمیں شہزادی اوکاشا کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے اپنے اصلی وقار لہجے میں بس ایک حکمیہ فکر ادا کیا، اور سب کنیزیں فوراً سارے کام وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اب صرف ملکہ صوفیہ اور شہزادی اوکاشا آمنے سامنے کھڑی رہ گئیں۔ اوکاشا کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ ملکہ صوفیہ نے اس کا چہرہ جبڑے سے دبوچا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اوکاشا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ملکہ صوفیہ کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ۔ بہت ہمت کرتے اوکاشا نے کچھ کہنا چاہا، والدہ میں مگر اس کی بات پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ ملکہ صوفیہ کا اٹھنے والا ہاتھ کمرے میں چٹاخ کی آواز کے ساتھ اوکاشا کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ یقیناً اس تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھی۔ گال پر ہاتھ رکھے اس نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ جب ملکہ نے اسے دوبارہ جبڑے سے دبوچ کر سیدھا کھڑا کیا، ایک دم سیدھی کھڑی رہو۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند کھڑائی تھی۔ اوکاشا اپنا لرزتا وجود سنبھالتی سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ کیا سمجھایا تھا میں نے کہ اس انگوٹھی کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرنا، اور تم نے کیا کیا؟ انگوٹھی ہی کھو دی۔ ملکہ صوفیہ کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگر رسلان کو اس بات کا علم بھی ہوا تو بس اپنا اس محل میں آخری دن سمجھنا۔ اوکاشا کے لبوں سے بے اختیار ایک سسکی نکلی۔ ملکہ صوفیہ نے اچانک اس کے بال دبوچے کہ اوکاشا درد سے بری طرح کراہ کر رہ گئی۔ انہوں نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ خاموش! اگر اب تمہاری سانسوں کی آواز بھی اس کمرے سے باہر نکلی تو تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گی۔ اگر تمہاری اس ایک چھوٹی سی بے وقوفی کی وجہ سے میری سالوں کی ریاضت ضائع ہوئی تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گی۔ بے وقوف لڑکی، صرف ایک چھوٹی سی انگوٹھی نہیں سنبھال پائی؟ وہ ایک لفظ شدید غصے سے اس کے کانوں میں اتار کر اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور پھینک دیا۔ اوکاشا سیدھی پلنگ پر گری۔ اس کا وجود بری طرح خوف اور درد سے لرز رہا تھا۔ بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ اوکاشا خود پر قابو پاتی بستر سے اٹھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک دروازہ کھلنے سے اور رسلان کی آواز نے ان دونوں کو ساکت کر دیا۔ ملکہ صوفیہ کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے اور اوکاشا جلدی سے پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور رسلان کے سامنے سر جھکا دیا۔ رسلان اندر داخل ہوا۔ ملکہ صوفیہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ کچھ خاص نہیں شہزادے، بس محل میں چھوٹے موٹے مسائل تو چلتے رہتے ہیں۔ رسلان نے سنجیدہ نگاہوں سے پہلے ملکہ کو دیکھا، پھر اوکاشا کو دیکھا۔ اتنی قیمتی اور انمول انگوٹھی کا کھو جانا آپ کے لیے معمولی سی بات ہے ملکہ؟ رسلان کے سنجیدگی سے پوچھے ایک سوال نے ان دونوں کے قدموں تلے زمین سرکا دی تھی۔ رسلان میں ملکہ صوفیہ نے اسے وضاحت دینی چاہیے، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا گیا تھا، اور اب وہ اوکاشا کے قریب آیا جبکہ چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اوکاشا اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکی۔ مجھے معاف کر دیں شہزادے، میں اتنی لاپرواہ ہو گئی، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ ملکہ صوفیہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر رسلان کو سچائی کی بھنک بھی پڑ گئی تو آپ نے انگوٹھی کیوں اور کیسے اتار کر کھو دی اوکاشا؟ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اوکاشا نے اپنی انگلی دیکھی جہاں زخم ہو گیا تھا جس وجہ سے اس نے انگوٹھی اتار دی تھی۔ وہ میرا ہاتھ۔ اس نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب ملکہ صوفیہ نے اسے آنکھوں کے اشارے سے سختی سے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ وہ غلطی سے ہو گیا، میں نے بس ایسے ہی اتار کر میز پر رکھ دی، پھر مجھے نیند آ گئی۔ جب صبح اٹھی تو انگوٹھی غائب تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے اس حد تک لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی توقع نہیں تھی اوکاشا۔ وہ سخت مایوس ہوا تھا، یہ اوکاشا واضح محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں شہزادے، مجھے معاف کر دیں، یہ غلطی آئندہ نہیں ہوگی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ رسلان نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑا اور ملکہ صوفیہ کو تو جیسے دل باہر آ گیا تھا۔ رسلان نے اوکاشا کو چھونے کے باوجود بھی دونوں کی آنکھوں کا رنگ نہیں بدلا۔ اوکاشا چہرہ نیچے جھکائے کھڑی تھی۔ رسلان نے اپنے ہاتھ سے پکڑی انگوٹھی اوکاشا کی انگلی میں پہنا دی اور بنا اوکاشا کی طرف
का चेहरा देखे उसका हाथ छोड़ दिया और मलका सोफिया ने शुक्र की सांस लेकर रुस्लान ने उसकी आंखें नहीं देखीं। ये रही आपकी अंगूठी और उम्मीद है अब आप इसे उंगली से नहीं उतारेंगी। रुस्लान का लहजा भी संजीदा था। आकाशा ने बेहद बेयकीनी से अपने हाथ की तरफ देखा जहाँ वो अंगूठी उसकी उंगली में अपनी मुकम्मल खूबसूरती झलका रही थी। उसकी आंखों में इस बार खुशी से आंसू आ गए। शहजादे, वो बस यही कह सकी। कल रात मैं आपके कमरे में आया था और मैंने क्या देखा कि आप इतनी कीमती अंगूठी ऐसे उतार कर कैसे सुकून से सो सकती हैं। और इतनी कीमती अंगूठी कोई भी चुरा सकता है और आपने गलती की थी। आपको सबक सिखाना भी तो ज़रूरी था। आकाशा ने भीगी आंखें उठाई उसे देखा। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी शहजादे। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। वो सर झुका गई थी। रुस्लान ने 2 लम्हे उसे देखा। अपना हुलिया ठीक करके बाग में आ जाएं। अभी आपको बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है। वो हुक्म सुनाकर कमरे से बाहर निकल गया और पीछे आकाशा ज़मीन पर बैठती चली गई। मलका सोफिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसमें से अंगूठी उतारी। तुम्हारी एक बेवकूफ़ी ने अंगूठी का सारा जादू ख़त्म कर दिया। अब मुझे दोबारा इस अंगूठी को तिलस्मी अंगूठी बनाना होगा। आकाशा सर झुकाए बस उनकी बातें सुन रही थी। वो भी गुस्से में थी मगर वो गुस्सा पहले से कम हो चुका था। मुझे माफ़ कर दें वालिदा, मैं शर्मिंदा हूँ। वो एक बार फिर रो दी। शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होता। पहले ये बेवकूफ़ों की तरह बात बात पर रोना बंद करो। शहज़ादी और मलका बहादुर होती हैं। वो ऐसे हर बात पर बैठकर रोने नहीं लगती। ठीक कहता है रुस्लान, तुम्हें बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है। महल के रस्म रिवाज सब कुछ भूलती जा रही हो तुम। वो इसके सर पर हाथ मारते उसकी अक्ल के खाने खोलने की कोशिश करती अब कमरे से बाहर निकल गईं। उनके जाने के बाद वो वहीं ज़मीन पर बैठी घुटने सीने से लगाए रो पड़ी थी। उसकी खोटी खोटी सिसकियों की आवाज़ कमरे की चारदीवारी में गूंज रही थी। उसकी पलकों में बहुत कुछ मुश्किल से जुम्बिश हुई। वो आंखें खोलकर आसपास देखने लगी। फिर उसे महसूस हुआ वो ज़मीन पर गिरी थी। कल रात के मनाजिर आंखों के सामने घूमे तो उसने अपने हाथ की तरफ देखा। अंगूठी उसके हाथ पर चमक रही थी। आकाशा हैरान हुई। फिर खुद को संभालती ज़मीन से उठी और ज़मीन पर गिरी वो किताब भी उठाई। उसने किताब को खोला। अब वहाँ एक और सफ़े पर अल्फाज उभर आए थे। आकाशा हैरत से वहाँ लिखी तहरीर पढ़ने लगी। शहज़ादे को अपनी मोहब्बत की ताकत से खुद ही शहज़ादी को तलाश करना होगा। अगर शहज़ादी उसे बता देगी कि वो कहाँ है और कैसे कह दे या किसी मुसीबत में है, कहाँ उलझी है, तो इस वजह से उसकी जादुई ताकतें उससे छीन ली जाएंगी। क्योंकि जादू के भी अपने कुछ असूल होते हैं। सब कुछ सीधे सीधे साफ साफ नहीं बताया जाता। कुछ पहले मुस्तकबिल के सुल्तान को भी सुलझाने दो। बस अगले सफ़ात फिर से खाली थे। आकाशा को अब समझ आई कि क्यों कल रात इस किताब ने से पूरी बात होने से रोक दिया था। वो ज़मीन से उठी और किताब को वापस अलमारी में दूसरी किताबों के साथ रखा। अभी वो पलटी ही थी जब मलका सोफिया उसके कमरे में दाखिल हुई। आकाशा ने हैरत से उन्हें देखा। आज आपने कैसे याद कर लिया मलका? वो तल्खी से मुस्कुराई थी। वैसे तुम थक नहीं जाते इस चारदीवारी में बंद रहकर? तुम्हारा दिल नहीं करता तुम भी बाहर की दुनिया देखो? खुला आसमान, झील का बहता पानी, आसमान से गिरती बर्फ़, ठंडी हवा, बारिश और रात को आसमान पर चमकते सितारे। और इसके सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई थी। दिल तो बहुत करता है मैं बस एक बार खुले आसमान के नीचे खुलकर सांस ले लूँ, मगर रुस्लान की बाहों में, उनके हिसार में, उनके सीने से लगकर खुली हवा में सांस लेने का तो अपना ही सुकून और मज़ा होगा मलका। और मैं रुस्लान के साथ ताज़ा हवा में ज़रूर सांस लेना चाहूँगी। मलका की मुस्कुराहट सिमट गई। वो हर बार क्यों भूल जाती थी कि जिसे वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं वो कोई आम सी लड़की नहीं, इस सल्तनत की इकलौती शहज़ादी थी। वो कुर्सी से उठी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर सकती हूँ। इनकी बात पर आकाशा हंस पड़ी। आप सौदेबाजी करने का मत सोचें मलका, क्योंकि ना तो मैं आपको अपनी अंगूठी दूंगी और ना ही आपके इस बेटी के लिए रुस्तान को छोड़ूंगी जो नकली आकाशा बनकर मेरी जगह छीनने की कोशिश में है। मलका के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया हुए। वो इनका दिमाग अच्छे से पढ़ना जानती थी। मैंने सालों दिए हैं इस महल को। अब मलका तो मेरी बेटी ही बनेगी और रुस्लान मोहब्बत करता है मेरी बेटी और रुस्लान मोहब्बत करता है मिस और रुस्लान मोहब्बत करता है मेरी इस असली बेटी और नकली आकाशा से। मलका ने जैसे उसका गरूर तोड़ना चाहा। आकाशा ने उनकी बात पर हंस पड़ी थी। रुस्लान शहज़ादी आकाशा से मोहब्बत करते हैं, असल शहज़ादी आकाशा से, आपकी नकली बनाई शहज़ादी से नहीं। वो भी सुकून से उनके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई और मलका को दोबारा कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वैसे आपको क्या लगता है आपने मुझे यहाँ कैद किया है? उसने एक लम्हे को उन्हें देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। आप चाहकर भी मुझे कैद नहीं कर सकती। मैं यहाँ खुद अपनी मर्ज़ी से कैद हूँ, वरना मेरे पास कौन सी और क्या क्या जादुई ताकतें हैं आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती मलका। उसने बात करते हाथ हवा में लहराया और कमरे की हर चीज़ हवा में उठ गई। मलका सोफिया बेहद बेयकीनी और फटी पड़ी निगाहों से उसे देखती रह गई। ज़रा मलका को बताओ मैं कौन हूँ?
वो शायद कमरे की चीज़ों को हुक्म सुना रही थी। फ़ौरन एक कलम और कागज़ मलका के सामने हवा में लहराया और उनके करीब आता अब कलम खुद ही कागज़ पर चलने लगा और कागज़ पर उभरने वाले हरूफ को देखते मलका सोफिया ने मुट्ठियाँ भींच लीं। सफ़ेद कोरे कागज़ के एन दरमियान में बड़े बड़े हरूफ में 4 लफ्ज़, शहज़ादी आकाशा रसलान सुल्तान, वाज़ह लिखा उन्हें दिखाई दिया। आकाशा ने अब के चुटकी बजाई। सारे कमरे में बस एक लहर गूंजी। हर चीज़ अपनी जगह वापस जाकर साकत हो गई। माना कि आपको काला जादू आता है मलका सोफिया, मगर मेरे पास इतने रंग के जादू हैं जितने रंग आपने अपनी सारी ज़िंदगी में देखे भी नहीं होंगे। अब के आकाशा के चेहरे की मुस्कुराहट सख्ती में बदल चुकी थी। मलका कुर्सी से उठी, उसके करीब आईं। ये जंग और ये कैद की कहानी तो चलती ही रहेगी शहज़ादी आकाशा। अभी तो मुझे बस आपका एक छोटा सा लम्स चाहिए। मकरूम मुस्कुराहट के साथ ये कहते उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई अंगूठी आकाशा के बाजू से ज़रा सी मस की और अंगूठी चमक कर मलका के लबों से मुस्कुराहट ले आई। आकाशा मुस्कुरा कर उन्हें देख रही थी। कब तक ये सब करेंगी? रसलान दोबारा जब इस अंगूठी को छुएंगे तो आपका ये नकली जादू दोबारा वहीं हवा बनकर उड़ जाएगा और ये अंगूठी किसी काम की नहीं रहेगी। इससे आपको सिर्फ यही फ़ायदा मिलता है कि रसलान जब आपकी इस बेटी को छुएगा तो इस अंगूठी पर मेरा लम्स होने की वजह से दोनों की आंखें चमक जाएंगी। मगर आपको एक बात बता दूं, मैं झूठ के पाँव नहीं होते, वो बहुत देर तक और बहुत दूर तक नहीं जलता। और रसलान खुद एक दिन मुझे यहाँ इस कैद से निकालने आएंगे, तब मैं वहाँ होंगी, आज़ाद, खुली हवा में सांस लेती हुई। उसने दरवाज़ा के उस पार इशारा किया। और आप यहाँ मेरी जगह इस कैद में। अब उसने कमरे की 4 दीवारी में इशारा किया। मलका सोफिया ने हाथ हवा में घुमाया तो कुछ खाना और ट्रे उनके सामने नमूदार हुआ। खाना खा लेना, वरना अगर किसी एक दिन मैं यहाँ तुम्हें देखने ना आई तो भूख से ही मर सकती हो तुम शहज़ादी आकाशा। मलका सोफिया नफरत से घूरती कमरे से बाहर निकल गईं। उनके जाने के बाद आकाशा ने नफ़ी में सर हिलाया और गहरी सांस ली। वो खिड़की के पास आकर खड़ी हुई और अब ये सोचने लगी कि वो कैसे रुस्लान तक पहुँचे, कैसे वो रुस्लान को ये बताए कि वो यहीं है, इसी महल में कैद, कैसे वैसे खुद तक पहुँचाए। और उसकी नज़र खिड़की से नीचे बाग तक गई। वहाँ रुस्लान और वो नकली शहज़ादी आकाशा चहलकदमी करते हुए कोई बात कर रहे थे। इस नकली आकाशा ने नीली पोशाक पहन रखी थी और रुस्लान ने महरून लिबास। आकाशा को न चाहते हुए भी न जाने क्यों बहुत गुस्सा आया। वो रुस्लान को किसी और के साथ कहाँ देख सकती थी। उसने खिड़की से हाथ बाहर हवा में निकालना चाहा, मगर अचानक ही उसका हाथ किसी जादुई दीवार से मस हुआ और आकाशा को एक ज़ोरदार झटका लगा। वो कराकर 2 कदम पीछे हुई। उसने अपना हाथ देखा जो ज़ख्मी हो गया था। शदीद तकलीफ़ और बेबसी की लहर उसके वजूद में उतरी। यही वजह थी जो वो इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकती थी। न जाने मलका सोफिया ने इस कमरे की 4 दीवारी को किस काले जादू से बांधा था कि आकाशा जब भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती या हाथ भी हवा में निकालने की कोशिश करती तो हर बार उसे ऐसे ही ज़ख्म मिलते थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो बहादुरी से ज़ब्त कर गई थी। उसने गुस्से से नीचे देखा, फिर आंखें बंद कीं, अंगूठी पर गिरफ्त सख्त की। नीचे रसलान और काशा खामोशी से चहलकदमी कर रहे थे। क्या बात है, मैं यहाँ इस कैद में आपका इंतज़ार कर रही हूँ और आप वहाँ इस नकली आकाशा के साथ चहलकदमी करने और बातें करने में मसरूफ़ हैं। रुस्लान के कानों में कुछ खफा सी सरगोशी पड़ी तो इसके लबों को मुस्कुराहटें छुपा। वो अब आकाशा को महसूस कर सकता था। क्या बात है, नार्निया की इकलौती ताकतवर शहज़ादी आकाशा एक मामूली सी नकली शहज़ादी बनी इस लड़की से जलती भी हैं। रुस्लान की आवाज़ खिड़की में खड़ी आकाशा के कानों में वाज़ेह पड़ी। वो अब इससे जानबूझकर तंग कर रहा था। जले मेरे दुश्मन, मैं क्यों जलने लगी? मगर आपको किसी दूसरी के साथ ना तो बांटूंगी और ना ही किसी दूसरी के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि मैं आकाशा हूँ, सुल्तान नवाब की इकलौती और बहादुर बेटी, और इसी के साथ साथ मैं आपकी बीवी भी हूँ रुस्लान। और आकाशा अपनी जगह और अपने रिश्ते छोड़ दे तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। आप पर सिर्फ आकाशा का हक है और मैं अपना हक किसी के लिए नहीं छोड़ती। इसलिए इसके लिए तो आकाशा को मरकर दोबारा ज़िंदा होना पड़ेगा, क्योंकि इस ज़िंदगी में तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। उसकी आवाज़ में थोड़ा सा गुस्सा भी शामिल था। जब आप खुद को लेकर इतनी वाज़ेह और पुरएतमाद हैं तो फिर आपको मुझ पर भरोसा भी तो होना चाहिए शहज़ादी। जो कर रहा हूँ आप तक पहुँचने के लिए ही कर रहा हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, रुस्लान ने सिर्फ़ एक औरत से मोहब्बत की है और वो सिर्फ़ आप हैं आकाशा। और मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि अब असली और नकली शहज़ादी में फ़र्क ना जान सकूं। हाँ, बहुत सालों तक मुझे धोखा देने की कोशिश की गई है, मगर अब और नहीं, अब मैं सब जान चुका हूँ। रुस्लान की बात पर आकाशा का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और वो कुछ पुरसुकून हो गई। वैसे आपको कैसे पता चला कि मुझे मालूम हो चुका है असली और नकली शहज़ादी का राज? अब के रुस्लान ने सवाल पूछा तो आकाशा की मुस्कुराहट सिमट गई। ये तो मुझे भी नहीं पता, बस मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे आपको ये कहना चाहिए कि आप नकली शहज़ादी के साथ हैं, तो मैंने कह दिया। मगर आपको कैसे मालूम हुआ कि वो मैं नहीं हूँ? वो हैरत से पूछ रही थी। रुस्लान की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये दिल का ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ जिससे मज़बूत ताल्लुक़ इस दुनिया में कोई नहीं।
तो ऐसा तो होना ही था कि मुझे मालूम हो जाता कि मैं कब तक अनजान रहता। एक ना एक दिन तो मैंने जान ही जाना था। बस हो गया मालूम, मिलने के बाद तफसील से बताऊंगा। आकाशा ने गहरी सांस ली जबकि वो नीचे इन दोनों को ही देख रही थी। जब अचानक रुस्लान के साथ चलती इस नकली आकाशा ने उसे मुखातिब किया, शहजादे, आप अब तक नाराज़ हैं मुझसे? रुस्लान ने चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर अभी भी दुख के तासुरात थे। रुस्लान साफ उसकी गाल पर उंगलियों के निशान देख सकता था। वो जैसी भी थी मगर उसे मुजरिम तो नहीं लगती थी। उसे इस लड़की पर बस तरस ही आ सका। मलका ने आप पर हाथ उठाया है? उसने संजीदगी से पूछा तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए। गलती मेरी थी, मैंने इतनी कीमती अंगूठी खो दी। उनका गुस्सा जायज़ था। उसने आजिज़ी से वजाहत की। ऐसा कैसे कर सकती हैं वो? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शहज़ादी पर हाथ उठाने की? रुस्लान काफ़ी गुस्से में आ गया था। वो माँ है मेरी भलाई के लिए उन्होंने अगर हाथ उठाया भी तो मुझे बुरा नहीं लगा, मगर आपने बताया नहीं शहज़ादे। क्या आप मुझसे अभी तक नाराज़ हैं? रुस्लान ने नफ़ी में सर हिलाया। मगर मुझे बहुत बुरा लगा है। इनसे तो मैं बात करूँगा, मगर अभी आपके सवाल का जवाब है कि नहीं? अगर शहज़ादी आकाशा कोई भी ऐसी गलती करती तो मैं कभी उससे नाराज़ ना होता, मगर आपने की आकाशा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रुस्लान की बात पर वो शर्मिंदगी से निगाहें झुका गई। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चाहकर भी आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे तो आप मेरी जान ले लें, मगर मुझसे कभी नाराज़ मत होइएगा रुस्लान। उसने रुस्लान का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। ऊपर खिड़की में खड़ी आकाशा अभी भी उन्हें ही देख रही थी। रुस्लान ने उनकी आंखें देखी जिनमें दूर दूर तक नीले रंग की कोई चमक नहीं थी, और वो भी अपने गम में रुस्लान की आंखों में गौर न कर सकी जो इसे छूने के बावजूद भी सुनहरी नहीं हुई थी। रुस्लान की नज़र उसके हाथ तक गई जहाँ अंगूठी नहीं थी। अंगूठी कहाँ है आपकी? रुस्लान ने नामहसूस अंदाज में उसका हाथ खुद से दूर किया। वो वालदा के पास है, उन्होंने कुछ देर के लिए सज़ा के तौर पर ली है। उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो वापस कर देंगी। रुस्लान ने बेयकीनी से उसे देखा। एक बार फिर एक और बेवकूफ़ी। आपकी अपनी अक्ल कहाँ है आकाशा? जब आपको मना किया कि वो अंगूठी किसी को भी नहीं देनी, तो फिर आपने मलका को क्यों दी? उसके लहजे में वाज़ेह गुस्सा था। आकाशा एक बार फिर शर्मिंदा हुई। शहज़ादे, मैं क्या कहती? उन्हें वो माँ है मेरी। मैं मना करना चाहती थी मगर उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं और अपनी मर्ज़ी से अंगूठी मेरी उंगली से उतार ली। रुस्लान ने देखा वो फिर से रोने के लिए तैयार थी। उसने अपना गुस्सा ठंडा किया। अच्छा बस ठीक है, परेशान ना हो, मैं मलका से बात करूँगा। अभी तुम जाओ अपने कमरे में। रुस्लान की बात पर उसने बेबसी से चेहरा उठाए उसे देखा। वो कुछ कहना चाहती थी मगर रुस्लान का हुक्म था, उसे मानना इस पर फ़र्ज़ था। वो इसके सामने सर झुकाकर उल्टे कदमों पलट गई। उसके जाने के बाद रुस्लान सोचने लगा कि वो अंगूठी मलका सोफिया ने क्यों ली होगी, और उन्होंने खुद ही ज़बरदस्ती उसे आकाशा की उंगली से उतार लिया, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि अंगूठी ज़बरदस्ती शहज़ादे की उंगली से उतारी नहीं जा सकती। इसका मतलब उन्हें मालूम था कि वो अंगूठी नकली है। रुस्लान लम्हों में सारी गुत्थी सुलझा चुका था। इसका मतलब मलका सोफिया ये भी जानती हैं कि ये आकाशा असली शहज़ादी नहीं है, तो इसका मतलब वो ये भी जानती होंगी कि असली अंगूठी और असल आकाशा कहाँ है। मगर अब सवाल ये था कि मलका सोफिया ने ऐसा क्यों किया। उनका मकसद अगर शहज़ादी आकाशा से किसी किस्म की नफ़रत या बदला था तो वो इसे वैसे ही रुस्लान से या महल से दूर रखती, मगर उन्होंने एक नकली शहज़ादी रुस्लान के सामने क्यों खड़ी कर दी, और इस नकली शहज़ादी से मलका को क्या फ़ायदा हो सकता था। यही सोच रुस्लान को अब यही सच ढूंढना था, और उसे अब ये भी समझ आ गया था कि उसकी आकाशा इसी महल में कहीं थी, क्योंकि शम्स के मुताबिक अगर वो दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं तो इसका मतलब इसकी आकाशा उसके पास थी, और शहज़ादी आकाशा को कैद करने के लिए ख़ुद ये महल ही सबसे महफूज और बेहतरीन जगह थी। और तेज़ कदमों से वापस अपनी ख़ाबगाह की तरफ बढ़ा। आकाशा ने हैरत से अंदर जाते देखा। ये रुस्लान को क्या हो गया? इतनी जल्दबाजी में क्यों थे? वो समझ ना सकी। उसने एक नज़र अपनी अंगूठी पर डाली। अगर आज ही मेरे पास ना होती तो शायद मैं किसी भी लम्हे रुस्लान को खो देती। उसने सरगोशी की और अब वापस पलट आई थी। रुस्लान जा चुका था। अब उसका इस खिड़की में बाहर देखना बेमकसद था, जबकि दूसरी तरफ रुस्लान अपनी ख्वाबगाह में चक्कर काट रहा था। जब शम्स अंदर दाखिल हुए, शहज़ादे सब ठीक है ना? वो रुस्लान को साफ परेशान देख सकते थे। शम्स, मुझे मालूम हो चुका है कि हमारा दुश्मन कौन है, या शायद वो हमारा नहीं, सिर्फ शहज़ादी आकाशा का दुश्मन है। शम्स ने हैरत से रुस्लान को देखा, जैसे वो जानना चाहता कि कौन है वो। एक शहज़ादी की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी सौतेली माँ ही होती है। हम आज तक इस बात को नज़रअंदाज करते रहे। मैं अक्सर ये सोचता था कि क्यों मुझे मलका और आकाशा में इतनी मोहब्बत, इतना बेहतरीन ताल्लुक़ खटकता है, और मेरा दिल मुझे वाज़ेह इशारा दे रहा था। आकाशा कहाँ है? ये बात मलका सोफिया से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने वो चांदी की नकली अंगूठी जो रात को बनाई थी वो आकाशा को पहनाई, मगर कुछ देर बाद वो अंगूठी उसकी उंगली में नहीं थी। मुझे आकाशा ने बताया कि वो अंगूठी मलका सोफिया ने उसकी मर्ज़ी के बिना उसके हाथ से उतार ली।
کچھ دیر اپنے پاس رکھنے کے لیے سزا کے طور پر، مگر مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ ملکہ صوفیہ جب اچھے سے جانتی تھی کہ وہ انگوٹھی کوئی بھی شہزادی کی انگلی سے زبردستی نہیں نکال سکتا، مگر پھر بھی انہوں نے نکال لی، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ جانتی تھیں وہ انگوٹھی نکلی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے وہ سکون سے اتار لی۔ اگر وہ یہ جانتی ہیں تو وہ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ میری آکاشا کہاں ہے۔ شمس بےحد حیرت سے رسلان کو دیکھتے جا رہا تھا۔ شمس، آپ اپنی وفادار اور سب سے قابل اعتماد کنیزیں اور محافظ ملکہ صوفیہ کی پہرےداری پر لگا دیں۔ وہ کیا کرتی ہیں، محل کے کس کس کونے میں جاتی ہیں، اور اگر محل سے باہر جاتی ہیں تو کہاں، مجھے ایک ایک لمحے کی خبر چاہیے، مگر اس طرح سے کہ ملکہ کو بھنک بھی نہ پڑے۔ ابھی ہم صرف شک کی بنیاد پر ان سے براہ راست کچھ نہیں پوچھ سکتے، اور اگر وہ کچھ جانتی بھی ہوئیں تو بتائیں گی ہرگز نہیں۔ ان کے سامنے مجھے معمول کے مطابق اس نقلی آکاشا کی فکر اور پرواہ کرنی ہوگی تاکہ انہیں شک نہ ہو، کیونکہ اگر انہیں شک ہو گیا کہ میں کچھ بھی جانتا ہوں تو وہ میری آکاشا کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں جو میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اصلی آکاشا کے پاس جاتی ہوں گی تو ہمیں علم ہو جائے گا۔ رسلان سمجھداری سے کام لے رہا تھا۔ شمس نے سمجھ کر سر جھکایا۔ آپ کے حکم پر فوراً عمل درآمد ہوگا شہزادے۔ رسلان نے سر ہلایا۔ آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں شمس کیونکہ آپ میرے رازدار ہیں، اور امید ہے آپ اتنے سال جیسے سلطان نواب کے اور اس کے بعد میرے وفادار رہے ہیں، اور اب بھی آپ صرف مجھ سے وفاداری نبھائیں گے، ورنہ جس نے میری بیوی کو تکلیف پہنچائی ان سب کے ساتھ اگر آپ نے نرمی برتنی چاہی تو ہر غدار کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا شمس۔ وہ سختی سے ایک لفظ ادا کرتا شمس کو بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ شمس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں شہزادے کہ آپ شہزادی کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں صرف آپ کا اور سلطان نواب کی نسل کا وفادار ہوں، ان کے کسی کنیز کا نہیں۔ شمس نے بہت وزنی بات کر دی تھی کہ رسلان کے لبوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ نے چھپا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ شمس اس کے سامنے سر جھکا کر الٹے قدموں خوابگاہ سے باہر نکل گئے۔ رسلان نے گہری سانس لی۔ بس کچھ عرصہ، جہاں اتنے سال اتنی دوری سہی، اتنی اذیت برداشت کی، بس چند دن اور آکاشا، میں بہت جلد تمہیں وہاں سے نکال لوں گا، اور یہ تمہارے رسلان کا وعدہ ہے۔ اس نے سرگوشی کی، آنکھوں میں نمی امڈ آئی تھی جیسے وہ مہارت سے چھپا گیا۔ اب اس کا رخ ملکہ صوفیہ کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ تیز قدموں سے ملکہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جو سکون سے سامنے دیوان صوفے پر بیٹھی کھڑکی سے باہر آسمان کے مناظر دیکھ رہی تھی، دروازے کھلنے کی آواز اور پھر رسلان کے آنے پر وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رسلان کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی آکاشا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ باہر کھڑی کنیزوں نے بھی سنی۔ ملکہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہزادی کی غلطی تھی تو میں تو بس وہ وضاحت دینا چاہتی تھی، مگر رسلان نے ان کی بات کاٹ دی۔ آکاشا غلطی کرے یا ہزار، جب میں نے اس سے کوئی سزا نہیں سنائی تو پھر آپ نے کس حق سے میری آکاشا پر ہاتھ اٹھایا؟ آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ کو سلطان نواب نے ایک عام سی کنیز سے آکاشا کی ماں بنا دیا۔ صرف نکاح کے بعد آپ کا مقام اتنا اونچا کر دیا کہ بنا کسی وارث کے ملکہ کا عہدہ تک آپ کو دے دیا، مگر اب یہ سلطان نواب کا دور نہیں ہے، یہ مستقبل کا سلطان رسلان کا محل اور میرا دور حکومت ہے، اور جب تک میں بادشاہ یعنی سلطان کے تخت پر براجمان ہوں تب تک آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہاں کی ملکہ صرف ایک ہے اور وہ آکاشا ہے، میری آکاشا۔ آئندہ اس پر اونچی آواز کرنے سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھے گا کہ آپ کو اس گستاخی کے لیے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ آپ کو اس کی ماں کا درجہ صرف سلطان نواب نے دیا تھا، مگر اب بھی آپ خود کو اس کی ماں سمجھنا بند کر دیں، اور وہ اس قابل ہے کہ اپنا اچھا برا خود سمجھ سکے۔ صرف اس کی ماں ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کا لحاظ کیا، یہ آپ کی پہلی اور آخری غلطی تھی جسے میں اب معاف کر رہا ہوں۔ وہ سختی سے ایک لفظ ادا کرتا واپس پلٹ گیا، مگر جاتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ رسلان کے جانے کے بعد ملکہ صوفیہ کے چہرے کا غصہ مسکراہٹ میں بدل گیا۔ وہ کھل کر مسکرائی اور سکون سے دوبارہ اپنی جگہ واپس بیٹھ گئی۔ واہ واہ شہزادے رسلان، آج تو آپ نے میری ساری تمنائیں پوری کر دیں۔ میری بیٹی سے اتنی محبت کہ میرا اس پر ہاتھ اٹھانا اتنا غصہ دل آ گیا، اور یہی تو میں چاہتی تھی کہ تم میری بیٹی سے اتنی محبت کرو کہ تمہیں یہ احساس بھی نہ ہو کہ اصلی آکاشا بھی اس محل میں سانس لے رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی سامنے کی۔ اب مجھے یہ انگوٹھی آکاشا کو دینی چاہیے تاکہ رسلان کو دوبارہ بھی اس کی انگوٹھی اور آکاشا دونوں کے نکلی ہونے کی بھنک بھی نہ پڑے۔ انہوں نے سرگوشی کی، پھر کھل کر مسکرائیں۔ کنیز کو حکم سنایا کہ آکاشا کو پیغام بھیجنے کہ ملکہ نے اسے یاد کیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی آکاشا ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر وہ انگوٹھی آکاشا کو واپس کی، پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے آکاشا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس کا ماتھا چوم کر انہوں نے اسے واپس اس کے کمرے میں بھیج دیا، اور آکاشا تو حیران رہ گئی، یہ ملکہ کو کیا ہو گیا تھا؟ پہلے تو انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اب گلے لگا کر ماتھا چوم رہی تھیں۔ پھر اسے احساس ہوا ضرور رسلان نے ان کا غرور توڑ دیا ہوگا۔ وہ یہی سوچتی مسکرا دی کہ چلو سب ٹھیک تو ہو گیا، مگر ابھی کون کون سے راز کھلنے باقی تھے اور کون سی چالیں ناکام ہونی تھیں، یہ تو اس محل نے خود ہی بتانا تھا۔
खुद ही बता देना था। नारनिया पर रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। महल की राहदारियां सुनसान थीं। एक अजीब सा सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। अपनी ख्वाबगाह में रुस्लान पलंग पर लेटा गहरी नींद सो रहा था जब अचानक उसकी ख्वाबगाह की भारी दरवाज़ा खुला। कोई अंदर दाखिल हुआ, नंगे पाँव, सफ़ेद आस्तीन सबसे पहले ज़मीन पर दिखाई दी। आहिस्ता आहिस्ता आने वाले का हुलिया वाज़ेह हुआ। वो आकाशा थी, शहज़ादी आकाशा, असली आकाशा। उसकी सरमई आँखों में चमक थी और उसके गहरे सुर्ख रंग के बाल उसके कंधों और शानों पर बिखरे हुए थे। उसने सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी। वो कदम कदम चलती पलंग तक आई, फिर रुस्लान के करीब झुकी और उसके कंधे पर हाथ रखा। रुस्लान, उठें। उसने आहिस्तगी और नरमी से उसे झंझोड़ा। रुस्लान, वो इससे पुकार रही थी। रुस्लान की नींद टूटी। उसे दूर से वो निस्वानी खूबसूरत आवाज़ कानों में गूंजती महसूस हुई। बहुत मुश्किल से उसने आंखें खोलीं तो वो इस पर झुकी हुई थी। कौन हो तुम? रुस्लान को उसका चेहरा धुंधला नजर आया। मैं हूँ रुस्लान, आपकी आकाशा। उठें, मुझे बचाएं, वो मुझे मार देंगे। उसकी आंखों में अचानक ही खौफ नमूदार हुआ। चंद लम्हे लगे थे रुस्लान को उसका चेहरा देखने में। आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा वाज़ेह हुआ तो रुस्लान ने देखा उसकी आंखें नीले रंग की रोशनी से चमक रही थीं। रुस्लान की निगाह अपने सीने तक गई जहाँ उसका हाथ था। फिर उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी आंखें भी चमक कर सुनहरी हो गई थीं। वो इसे बाजू से पकड़े बिस्तर पर उठा चुकी थी। रुस्लान ने अपना वजूद ढीला छोड़ दिया। चले मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़े उसे ख्वाबगाह से बाहर लाई। अब वो इसके साथ महल के अंदरूनी हिस्से में जा रहा था। रुस्लान सामने नहीं देख रहा था, वो आकाशा को देख रहा था और अपने हाथ को जो उसके हाथ में था। वो हॉल में आकर एक जगह रुके। एक तरफ जीने थे जो महल के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाते थे। वो जीने चढ़ती ऊपर जा रही थी। रुस्लान उसके साथ चलता जा रहा था। न जाने वो महल के किस किस कोने से होती उसे एक कमरे में लाई और वहाँ आकर उसने रुस्लान का हाथ छोड़ दिया। रुस्लान होश में आया, हैरत से आसपास देखा। वो कोई पुराना कमरा था जहाँ एक पलंग था, एक तरफ एक कुर्सी मेज़ मौजूद थे और एक दीवार के साथ अलमारियाँ बनी थी जिनमें बहुत सारी किताबें थीं। कमरे में एक छोटा सा रोशनदान था जो नीचे होने की वजह से खिड़की की तरह काम करता था। रुस्लान की नज़र खिड़की के पास गई। नीचे वो ज़मीन पर ज़ख्मी पड़ी थी। रुस्लान को याद आया, अभी तो वो इसका हाथ पकड़े उसे यहाँ तक लाई थी, फिर वो ज़ख्मी कैसे हो गई। वो तेज़ी से उसके करीब आया। आकाशा, तड़प कर इसे पुकारा। इसका सर उठाकर अपनी झोली में रखा। वो इसका गाल थपथपा रहा था मगर आकाशा का वजूद बेहिस्सो हरकत रहा। फिर रुस्लान को महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। रुस्लान ने पलट कर पीछे देखा तो वो इसके पास ज़मीन पर बैठी थी। रुस्लान हैरान हुआ, एक वक्त में दो आकाशा, मगर नहीं, वो इसका वजूद नहीं था। तो फिर क्या वो रूह थी? मैंने कोशिश की थी आपको वक्त पर यहाँ लाऊं ताकि आकर मुझे बचा लें, मगर आप नहीं आए रुस्लान। उन्होंने मुझे मार दिया, उन्होंने मुझे आपसे छीन लिया। मैं मर गई रुस्लान, अब हम कभी एक नहीं हो सकेंगे। उसकी आवाज़ में नमी घुली थी और रुस्लान का दिल करची करची हो गया। नहीं आकाशा, ऐसा ऐसा मत कहो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो रो पड़ा था मगर वो नफ़ी में सहलाती ज़ख्मी सा मुस्कुराई। अब बहुत देर हो गई है रुस्लान। उसने एक आखिरी सरगोशी की और फिर उसका वो अक्स हवा में तहलील हो गया। रुस्लान ने तड़प कर अपनी झोली में बेजान पड़े आकाशा के वजूद को देखा। नहीं आकाशा, वो इसे अपने सीने से लगाए चीखा था। उसके लबों से एक चीख निकली, आकाशा। और वो उठकर बैठ गया। हैरत से आसपास देखा तो वो अपनी ख्वाबगाह में था। बाहर रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। रुस्लान का सांस फूला हुआ था, वजूद पसीने से भीग गया था। उसने अपना सीना मसला। ओह, तो ये बस ख्वाब था, इतना बुरा ख्वाब। एक लम्हे के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने वाकई आकाशा को खो दिया था। उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना अभी तो यह सिर्फ ख्वाब था, कभी भी खौफनाक हकीकत बन सकता था। मगर वो ये नहीं जानता था कि ख्वाब में उसके साथ हुआ क्या। उसने अपनी टांगों से लिहाफ दूर किया और उठकर बाहर बालकोनी में आ गया। इतना खौफनाक ख्वाब देखने के बाद वो सुकून से सो नहीं सकता था। वो इस चेहरे को पहले भी बहुत बार ख्वाब में देख चुका था। वो इसे मदद के लिए पुकारती थी मगर तब रुस्लान ये नहीं जानता था कि वो इसकी असल आकाशा है। अब उसे मालूम था उसे जल्द से जल्द आकाशा को तलाश करना होगा। जबकि दूसरी तरफ चार दीवारी में कैद आकाशा की नींद टूटी। उसकी आंखें एक झटके से खुलीं। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। उसने अपने पाँव देखे जिन पर जख्म बन गए थे। रुस्लान ने तो बस ख्वाब देखा था मगर वो ये नहीं जानता था कि ख्वाब में आकाशा को देखना सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, वो सच में वही थी। उसके ख्वाब में आकाशा ने बेबसी से अपने आंसू साफ किए। उसने रुस्लान को इस कमरे का पता तो दे दिया था, अब देखना ये था कि उसे याद भी रहता है या ये कमरा और वो इसे कब तक तलाश कर सकेगा। वो दोबारा बिस्तर पर लेट गई मगर अब नींद नहीं आ रही थी। वो आ भी नहीं सकती थी। अजियत ही इतनी थी कि वो सुकून से सो भी नहीं पाती थी। दोनों अपनी अपनी जगह बेचैन और तकलीफ़ में थे, मगर कमाल तो ये था कि तकलीफ़ और बेचैनी एक दूसरे के लिए ही थी, जारी है।